अब मैं यही खड़ा कुछ हूँ। हो रहा होगा यार। ऐसे मत देख चलो। वापस से होगा। क्या पढ़ा है आपने? कॉमर्स स्टूडेंट थे आप? मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट था। मेरे को बट अकाउंट ही नहीं आता बिल्कुल। कुछ नहीं उधर कुछ नहीं होगा। क्रिएटर लोग हैं। हाँ। एंड करे पॉडकास्ट, नहीं खत्म, कट। जा रहा हूँ मैं, पैसे वापस। पैसे कौन से? एक कॉफी पीते हैं यार, चलो। एक नहीं चार। 4-5 पियेंगे। So, hello guys, this is Sanskar this side, and we are doing this podcast today. And we have Shakti this side. Hello, Shakti bhai. So, please अपने बारे में थोड़ा सा introduction दीजिए, and then we'll start with the podcast. ठीक है. Hi guys, this is Shakti Singh Chaudhary. I'm a cinematographer by profession. I run a company named Visual Vibes Production, and I'm doing this since like last 6-7 years. तो मैं आप लोगों को बता दूँ that I've been working with Shakti Bhaiya since 2 years now. I've learned a lot of things. That's why मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैंने सीखी है शायद आप लोग तक भी पहुँचेगी तो अच्छा होगा. तो let's start with a childhood story से हम लोग start करते हैं इसको कि how it all started and how Shakti found his passion. He was a crazy wild child, always on the go, always doing something, always playing something. So since my childhood, I was like way involved in like sports activities and all kinds of things I can do, physical forms of activities. So I was not a good student at any given point in my life, in my school, in my college. You're passed out from Prestige University. Yeah, काश वो पैसा मैंने इक्विपमेंट में डाल दिया होता. So I want to ask you कि सबका like basically एक point आता है जब उसको पता चल जाता है कि this is what I want to do in my life. आपकी लाइफ में पॉइंट कौन सा था? आफ्टर पासिंग आउट 12 अच्छी क्वालिटी वाले फोन्स आ गए थे हाथ में, डिसेंट अमाउंट ऑफ फोटोग्राफी कर सकते थे. सो माय एल्डर सिस्टर saw that I have a good eye for photography. I used to click good photos. Naturally उनका composition अच्छा होता था. घर में सबसे अच्छी फोटो मैं ले लिया करता था. I used to like it, like capturing life, capturing moments. कुछ भी हो रहा है उसको capture करना. I used to feel very amazed by that thing कि I can capture this memory forever and I can come back to it after a long time again. पता नहीं, I think हर चीज़ जो होती है आपकी लाइफ में it's like already somewhere there, जैसे बोलते हैं ना, लिखा हुआ है. मतलब जो होना है, the timeline is already set. It was decided for me that I'm gonna get into this field. क्योंकि मेरे बड़े पापा को एकदम से कहीं से उनका मन हुआ कि उनको DSLR लेना है. उनको एकदम से कहीं से लगा कि उनको कैमरा लेना है, उनको फोटोग्राफी करनी है थोड़ी बहुत. ऑल्दो उनको ABC भी नहीं पता था कैमरा का, तो उनने ले लिया. मुझे एकदम से इतना एक्साइटेड फील हुआ. I started researching for the same camera, started looking up कि what is photography, कैसे करते हैं लोग, कैमरा कौन सा बिगनर्स के लिए अच्छा है. अभी भी ऐसा है कि if I'm investing something in my equipment as well, मैं रगड़ देता हूँ इंटरनेट को, पूरा घिस डालता हूँ मैं सारा, कहाँ जहाँ पे भी जो भी नॉलेज है जो मैं ले सकता हूँ. So by the time I'm getting the equipment, I know everything about it from A to Z. So that happened. जो हमने कैमरा लिया था तब 200D. What was your like first camera? 200D, Canon 200D. हाँ, उस टाइम पे 200 ले जा रहा था. 200D बस लॉन्च हुआ. हाँ. सो हमने 200D लिया, और जैसे हमने लिया तो बड़े पापा का तो पता नहीं, मेरे हाथ से वो छूटता नहीं था. Okay. I started using it, I started utilizing it to all the lengths I can. Monsoon का मौसम था and season था. There was a lot of moments happening here and there. So monsoon for me is a very cinematic season. Lighting It wise is a very cinematic season. you can have a lot of moments that you can capture. उसको पहले initially तो उसको मैंने बहुत यूज़ किया और उसके थ्रू I started learning editing. जैसे ही वो DSLR आया तो उससे मुझे पता चला कि this is something that I can do. I can do something in it. I can be a good photographer. I don't know कितना आगे तक जाऊँगा मैं, तो that's how I was. Like naturally I'm a kind of person who lives in the moment. मतलब मैं परसों का भी नहीं सोचता. आप एक बात बताओ कि एक्चुअल में एक मेंटर कितना हेल्प करता है फॉर अ बिगिनर? So there are a lot of new photographer who's getting into this field, और उनको ऐसा लगता है, जैसा मुझे लगता था कि we need a mentor, but they don't have the budget for a mentor. So obviously it's not like a coaching class जो को थोड़े से पैसे में आपको 11th
पास करा देगा, 12th पास करा देगा. They charge good. And for me, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं ऐसा ही रहा हूँ हमेशा से कि I used to research a lot. I was good at researching about the things I'm excited for. तो I started learning on my own, और उस वजह से मैं धीरे धीरे खुद से ही सीखता गया. I entered my first year in the college, और उसमें I enrolled for the mass communication department, and that was my course as well. So वहाँ पे जो भी कॉलेज में हो रहे हैं छोटे छोटे इवेंट्स और जो भी चीज़ें हो रही थी उसमें आई वाज लाइक अप फॉर इट कि आई वांट टू डू दिस. आई इंडल्ज्ड विद माय सीनियर्स की टेक मी विद यू, आई आल्सो फोटोग्राफ, अगर आपको अच्छे लगे तो यूज़ कर लेना, वरना कोई बात नहीं, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी. धीरे धीरे आई स्टार्टेड लर्निंग ऑन माय ओन, और एक पॉइंट तक मैंने काफ़ी कुछ सीख भी लिया था खुद से. सो then I realized that you don't have financial condition to pay a mentor, a good amount to a mentor. Internet is the biggest mentor you can have and the best. लाइफ में मैंने भी अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ से सीखा है तो दैट इज इंटरनेट. Like YouTube was my बाप. मतलब सेम फॉर मी. there's everything on YouTube that you can learn if you know how to search it, if you know how to look out for it, and learn a lot. भाई साहब मैंने सीखा YouTube से, और ऐसा कुछ भी नहीं है टिल डेट जो मुझे ऐसा लगा हो आज तक पिछले 6, 7, 8 साल में कि मुझे किसी से जाके पूछना पड़ेगा ये चीज़ ऑनलाइन नहीं मिल रही है मुझसे. सो आई फील कि जो अमाउंट ऑफ नॉलेज आपको इंटरनेट से मिल जाता है, द ओनली थिंग यू हैव टू इन्वेस्ट हियर इज योर टाइम. वो ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है और पूरे मन से, लाइक पूरे मन से. you have to decide कि Yeah. yes, this is something I want, this is something I'm getting into, and I want to go like all the way in. I know like that जो पर्सनल कोचिंग होती है, like जो वन ऑन वन कन्वर्सेशन होता है किसी के साथ में, that is different, but here you can like get a lot of better people. See, I know a lot of photographers, उनने mentors के थ्रू सीखा है और उनने बहुत अच्छा सीखा है. Yeah. ठीक है, no doubt in that, and it's fast, it's easy. जब आप खुद से सीखते हो, जब आप कुछ ढूंढ के निकालते हो और आपको पता चलता है कि ओ ये चीज़ भी है, ये भी मेरे हेल्प कर सकती है, I can put this into my routine, वो आप फिर कभी भूलते नहीं हो. I guess Yeah. एक बार मेंटर कुछ सिखा रहा है तो वो आपको लिखना पड़ता है Yeah, कॉपी yeah. में कि अच्छा ये बोला. एक्चुअली क्या होता है जब इंसान यूट्यूब से कोई चीज़ सीखता है ना, तो वो एक अलग सा एक्साइटमेंट रहता है उसके अंदर कि आई वांट टू लर्न दैट. उसके लिए वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करने के बाद उस चीज़ को अप्लाई कर रहा है, फिर वापस चेक कर रहा है, फिर अप्लाई कर रहा है, फिर चेक कर रहा है. Yeah. तो वो बैठ जाता है माइंड में. मैंने कई बार देखा है फोटोग्राफर्स को या वीडियोग्राफर्स को कि कॉपी करने लग जाते हैं एकदम सेम टू सेम व्हाट द मेंटर इज डूइंग. द पर्सन से सीख रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी करने लग जाते हैं. द वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस आर्टिस्ट कि आप बिल्कुल भी सेम टू सेम कर ही नहीं सकते. ट्रू. एक स्टाइल भी होता है ना हर फोटोग्राफर का, वो भी कोई कॉपी नहीं कर सकता है. I can't copy or compose. Yeah. ना. लॉट ऑफ पीपल से अबाउट लाइक क्रिएटिव ब्लॉक्स हो जाते हैं. Hmm. आप बताओ, डू यू हैव लाइक आपको होते हैं क्रिएटिव ब्लॉक्स या फिर? ठीक है. Does it exist a creative block and like getting saturated with your work? So yes, it happens, but not like कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है. वो होता ही इसलिए क्योंकि आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा. हाँ मतलब आपका डेली रूटीन जो है इट्स नॉट गुड. आपका लाइफ जीने का जो तरीका है दैट्स नॉट गुड. यू हैव टू फिगर आउट दैट शिट कि यस मुझे पर्सनल टाइम भी लेना ज़रूरी है. अगर मेरा मन हो रहा है कुछ नया करने का तो वो उसके लिए मुझे टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि दिस विल हेल्प इन ऑल माई एस्पेक्ट्स. How do you manage that with a lot of ton of work with yours? Yes. So some days we have a lot of some days we have a very hectic schedule. तो कभी कभी ऐसा होता है कि straight up एक वीक तक हम काम कर रहे हैं. So me and my partner Mansi, we run our company, and उसमें होता ऐसा है कि कभी कभी एक वीक में हमको बहुत कंटिन्यूस शूट करने पड़ता है. एक वीक के बाद हमारी एनर्जी पूरी तरीके से नीचे आ जाती है, हम बहुत थक जाते हैं मेंटली भी फिजिकली भी, और उस चीज़ को हम फील करते हैं कि हाँ ये अब हो रहा है, ठीक है एनर्जी कम है एंड दैट्स ऑल राइट, बट लेट्स डू समथिंग टू गेट बैक दैट एनर्जी, लेट्स टेक अ लिटिल रेस्ट. तो फिर वो तो अगर
ऐसा कभी होता है कि एक वीक का हेक्टिक शेड्यूल है जिसमें कंटिन्यूस शूट कर रहे हैं हम, लाइक 8-9 शूट कर रहे हैं एक वीक में, तो उसके बाद एक वीक के बाद वी टेक अ डे आउट, वी गो फॉर सम लॉन्ग राइड, अगर हमारा मन कर रहा है तो वी गो फॉर सम शॉपिंग, अगर हमारा मन कर रहा है तो विल जस्ट सिट एट होम, drink some coffee, watch some movie and just chill. We will not think about our work at all. And that helps. That helps क्योंकि एक वीक तक हमने खूब काम किया, खूब हसल किया, पूरा फोकस करके काम किया, और अब जब हमको थोड़ा सा ब्रेक मिला है तो अब उसको हमने साइड में रख दिया है और हम नॉर्मल लाइफ को भी जी रहे हैं। हम जो लोग नॉर्मल लाइफ में करते हैं वो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स इम्पोर्टेंट अगेन, क्योंकि वही टॉकिंग अबाउट दैट सैचुरेशन वाला थिंग, अगर मैं कंटिन्यूसली वर्क करता जाऊंगा ये सोच के कि नहीं और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए और लोगों को इम्प्रेस करना है और नाम बनाना है, करते ही रहो लगे रहो, घर वालों को टाइम नहीं दूंगा, मैं मेरे रिलेशन को टाइम नहीं दूंगा, मैं किसी चीज़ को टाइम नहीं दूंगा, कॉफ़ी पीनी है तो मैं ऑन द गो पी लूंगा, वैसे वो वर्क करता नहीं। इट्स नॉट अ गुड वे टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाउ टू लाइक कैलकुलेट योर कॉस्ट ऑफ योर वर्क, आइडियली कैसे होना चाहिए, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है, बट देखो ऐसा है कि इंडियन मार्केट के हिसाब से आप मन से तो मांग नहीं सकते। इट्स लाइक मन से बोल दिया कल 1,000 मांगे थे आज 10 मांगूंगा, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। सो अगेन जहाँ भी, इट्स नॉट जस्ट फॉर इंदौर, जिस भी सिटी में आप काम कर रहे हो एज अ क्रिएटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो, कम्युनिटी ऑफ क्रिएटर्स। क्यों? क्योंकि तो आपको पता रहता है कि किस हर और सारे, जब आप कम्युनिटी से कनेक्टेड हो तो आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, जो अच्छा भी काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा भी नहीं कर रहे हैं, जो एवरेज काम भी कर रहे हैं, जो बहुत हाई पेइंग काम भी कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे आपको पता रहता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या चार्ज कर रहे हैं, ठीक। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि मतलब कोई भी अपना एग्जैक्ट रेट नहीं बताता है। यार देखो, 1-2 लोगों से आप मिलोगे, उनको दोस्त बना लोगे, वो और अलग 4 लोगों से दोस्त है, वो और अलग 4-8 लोगों से दोस्त है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये जानना कि ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही हफ्ता हुआ है आपको ये करते करते। बट हो सकता है एक इंसान दूसरा कैमरा यूज कर रहा हो, उसका कॉस्ट लगा रहा हो, आपका कॉस्ट लगा रहा हो, वही। सो सी, यू कैन सी कि आपका कितना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, आप किस टाइप का इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, और आप किस टाइप की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो। यू ऑलवेज नो कि आपका काम कितना अच्छा है कितना गंदा है कंपेयर टू ऑल अदर्स। आप ये तो हर क्रिएटर कर सकता है कि वो अपने काम को एक लेवल पे रख सकता है कि हाँ इनसे बेटर है और इनसे हल्का है। उस बेसिस पे यू कैन कैलकुलेट, उस बेसिस पे यू कैन सेट सम चार्जेस। और ये भी होता है कि जब आप ओवर चार्ज कर रहे हो आपको धीरे धीरे टाइम के साथ पता चल जाता है, ओके, थ्रू क्लाइंट्स फीडबैक या थ्रू योर कलीग्स फीडबैक। और जब आप अंडर पेड हो वो भी आपको पता चल जाता है टाइम के साथ, Time जैसे आप करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। इवन दो अभी तक जब हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक हमारा चैनल ऐसे बना भी नहीं है, बट स्टिल ही सेड यार, भरोसा रखा है हम खुद पे ही, भाई अच्छा जाएगा। थैंक यू बाय द वे कि इतना ट्रस्ट करने के लिए मुझ पे कि लाइक अभी तो बना ही नहीं चैनल, वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट। सी डजंट मैटर, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं आई एम श्योर इट्स गोना हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। चैनल से ज्यादा भाई मुझे तेरे पे भरोसा है, ये तो बात ही अलग you're killing it, या we're gonna do great and we can all see that या and you're loving it whatever you're doing. So genuinely for me and a lot of creator friends, he's the most genuine person in the whole Indore who's doing this work. He's genuinely trying to inspire a lot of people, trying to help a lot of people, especially the beginners, the newbies in this artistic field. And thank you so much Sanskar for doing this. You're doing a great job. ओके गाइस, सी यू अगेन। बेसिकली होना क्या वाला है अभी कि हम लोग एकदम बिगिनर्स के बारे में बात कर चुके हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत सारी चीज़ आपको समझ नहीं आएंगी। अगर आप ये चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो आपको अभी ये चीज़ें पहले समझना ज़रूरी है, उसके बाद वो चीज़ें आप डेफिनेटली बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो लेट्स रैप इट अप। लेट्स एक कॉफ़ी पीते हैं, चलो। एक नहीं 4 4-5 पियेंगे।